These are the small things, but at least you have to know. आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेडर वैल्यू क्या होता है, राइट? हेडर कितने डेटा कंटेंट कर रही है, हेडर में किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है. Okay, gentlemen. So let's say. So there are total numbers of ports. How many numbers of ports? So here we are talking about the ports. So these ports are the physical ports or the logical ports? Logical. What is logical? Logical होता क्या है? जहाँ से आप यूएसबी वगैरह कनेक्ट करते हैं वो हमारे फिजिकल पोर्ट्स ठीक है. एंड लॉजिकल पोर्ट्स हो गए एचटीटीपी वो सब जो हम लोग देख नहीं सकते. Anyone else? Vamsi? Saisari? Sir, logical port basically it can't touch. We can't touch. Correct, we can't touch. We can't feel it. Yes. Okay, so these are the total numbers of ports, right? If we gonna count from the from 1, then this much, and if we gonna count from the 0, then it will be become 1 plus. Okay. Okay. So what the range of the well-known port here? 0 to 1024. So why these are well-known ports and why this called as a well-known port? Well-known ports. Please answer my question. Hello. Sir, these are reserved for the system services and widely used applications. Okay. So can we use this port like maybe 1000? As you said that these are the reserve. So if I'm trying to use this port, so am I able to use it? And tell me the range of the use for the experiment purpose. Range. बताओ आपके एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए क्या किस रेंज से किस रेंज तक हमारी पोर्ट यूज हो रही है? हेलो. अरे एटलीस्ट कोई तो बोलो. 491522 65535.
49 1522 6000 65,535. 49152, not 22. 49152. Yeah. So 49152 265. 535. Correct. And the register port? It's 1024 to 49151. REG. Okay. One zero zero. Four nine. Okay, so all the register port actually we can use it. Okay, so these are freely available and you can use it. So why it's called well-known ports? Because there are some different services, right? Means different, and the common services are used these ports actually, like SFTP, FTP, SSH, like Echo, then LDAP, and many more. Right? POP3, IMAP, yes, SMTP, DNS, SCTP, SCTPS, VNC, RDP. These all are the services, right? Run on each particular ports. So the port number 20. Just tell me the port number 20 and 21. For FTP. Correct. Which service are running on this port number is FTP. FTP. And what is called as a file transfer protocol. Transfer protocol. Yeah. File transfer protocol. Okay, so these two ports work on which protocol? TCP और UDP? करेक्ट. यहाँ पे जो आपको जो भी सर्विसेज दिख रही है वो भी कोई प्रोटोकॉल पे चल रही है, right? Maybe they use UDP and may they use TCP and may they use both, right? So tell me what protocol used by the FTP service. And this is a TCP. So UDP नहीं, only TCP, only TCP होना चाहिए. देखो तो सही, देखोगे तभी तो पता चलेगा. ठीक है. सो देखो पोर्ट नंबर 20 एंड 21 पे इन दोनों पोर्ट पे हमारी FTP सर्विसेज चल रही है. ठीक है. एंड ये दो पोर्ट पे क्यों चल रही है? Why the two port? One for data transfer and one for control connection. ठीक है. एंड DNS 53. TCP पे भी चलती है. TCP पे भी चलती है. मोस्टली UDP पे चलती है, लेकिन TCP भी वो चलती है. ठीक है. व्हेन कब चलती हो TCP में? जब UDP कॉन्सेप्ट अच्छा है. जो UDP ऐसा नहीं है. चलो. सो पोर्ट नंबर 20 एंड 21 दोनों ही पोर्ट्स पे हमारी FTP सर्विसेज चल रही है. ठीक है. तो बताए हमें कि इन दोनों पोर्ट पे क्यों चल रही है, कि एक सर्विस एक पोर्ट पे चलनी चाहिए, लेकिन ये दोनों पोर्ट पे क्यों चल रही है? एक यूज होती है हमारे डेटा शेयर करने के लिए, एक यूज होती है ऑथेंटिकेट करने के लिए, राइट? हाँ.
सो कौन सी पोर्ट नंबर हमारी ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होती है, कौन सी फाइल शेयरिंग करने के लिए? करेक्ट, 20 for करेक्ट. सो आई होप एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट. कोई डाउट हो तो पूछो आप लोग, ठीक है? चुप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो चुप ही रह जाओगे हमेशा. So Sir, can 20, you share the port numbers for data share and data authenticate? Like which port is which one? what you were saying, can you repeat it again? Sir, just now you said that the data share port number is something. So can you repeat once? Okay, so the port number, so actually the FTP works on this two port number by default, 20 and 21. Okay, so in this two port number, actually the file transfer done by port number 20, okay, and the authenticity is done by 21. Okay, sir. Right? Okay, so port number 20 used to share the files, and port number 21 used to I think spelling is correct, authenticate. Okay. And remember it, FTP actually doesn't have any security features, right? It actually share the data in a plain text. That means if the hacker performing a man-in-the-middle attack, so they can capture the username, password, and anything. Okay. So ये कैसे कर सकता है? दिखाऊं मैं या ना दिखाऊं? Yes, sir. प्रैक्टिकल एक बार सर मेनली अगर आपके वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर है तो वो अगर इन केस लाइक वाईफाई क्यों एक्सेस कर रहा है तो वैसे एक्सेस कर पाएंगे. करेक्ट. आखिर तो सेम नेटवर्क पे तो हम सारे देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जस्ट लाइक मैंने जब STTP मैंने दिखाया था तो आपको दिखाया था पासवर्ड्स एंड दिख रहा था. जस्ट लाइक FTP भी सर्विस को यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो हम किसी का भी पासवर्ड्स एंड जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो हम रीड कर पाएंगे, ठीक है, इन द प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटीज नहीं है. अब इसको इन्हेंस करने के लिए क्या लाया गया? FTPS, राइट. And now we're gonna discuss about the FTP. So एक प्रोटोकॉल के बारे में ना हम लोग the basic things and the security things, right? कैसे उसको ज़्यादा secure कर सकते हैं, right? So this is not the best practice to use the FTP just like this. Always try to use FTPS. Okay. So for the S you have to actually configure it, right? You have to configure it. ऐसा नहीं है कि काफी सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि जैसे कि जस्ट लाइक HTTP एंड HTTPS है कि नहीं, अलग अलग पोर्ट्स पे चलते हैं. तो नाउ वी सी द FTPS, ठीक है. देन हम बात करेंगे SFTP के बारे में. सुना क्या है ये? हाँ, SFTP, it's called the Secure File Transfer Protocol. Work on the port number 22. 22. Over SSH. SSH क्या है? Secure Cell. Secure socket shell. Correct. Secure Cell. Yeah. Okay, so SFTPS. So actually, what actually happened here? So S actually defined the SSL and TLS. Okay, it's actually whenever you sharing your data, it's actually encrypted, right, with a key, right, that only with decrypted to the destination. प्राइवेट. Correct. ठीक है. So here the क्या यहाँ पे आ जाती है हमारी
So FTP as FTP is a secure version of FTP. It's transfer the data and encrypt it. FTP के अंदर वेरिफिकेशन के लिए अलग से कोड था FTPS के Same SFTP. SFTP अलग हो गया, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ FTPS के बारे में, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन हमारी FTP में परफॉर्म हो रहा था, ये भी सेम वही कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा, बट इन ए सिक्योर मैनर। दोनों काम करेगा। दोनों काम करेगा। हाँ। क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ, कर सकता है, लेकिन करता नहीं है ये। एक ही पोर्ट वो यूज करता है 990 कौन सी? 990 990 FTPS। हाँ FTPS पोर्ट नंबर 20 और 21 पे भी रन करता है। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। जो भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स है ना, आप किसी और पोर्ट्स पे इनको सेंड कर सकते हो, राइट। जरूरी नहीं है कि पोर्ट नंबर 21 पे ही हमारा FTP चलेगा, आप उसको कहीं और भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन आपके हाथ में, आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। So I hope it's clear FTP and FTPS. Yes, bro. Now is SSH. प्रैक्टिकल का इसका एक बार आप दिखा देते हैं FTP का Practical इसके लिए 2 मशीन मुझे डिप्लॉय करनी पड़ेगी। एक काम करो, आपके पास वर्चुअल बॉक्स कौन यूज कर रहा है? वर्चुअल बॉक्स, नॉट VMware। कौन यूज कर रहा है? VMware वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। आप वर्चुअल बॉक्स में जाओ एंड हेडफेयर से कनेक्टेड तो ना सेम नहीं, मैं एक्चुअली क्या करूँगा, मैं FTP उनके सिस्टम पे FTP सर्विस ऑन करूँगा एंड मैं उनके सिस्टम पे एंटर करूँगा, राइट। मे भी हो सकता है कि मान लो एक कंपनी का नेटवर्क है, ये वो वहाँ से होस्ट कर रही है फाइल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, FTP सर्वर उनके सिस्टम पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि एक्सेस करना, तो मैं वो करूँगा, राइट। एंड करते समय आखिर कोई ऐसे कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है, जो कि इस नेटवर्क पे क्या कर रहा है, स्नीफिंग कर रहा है, राइट। तो वो जो भी मैं पासवर्ड टाइप करूंगा वहाँ पे, वो पासवर्ड भी उसे मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, कमांड टाइप कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें वो देख पाएगा, बैठ के मॉनिटर कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज FTPS, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं कि जैसे है कि हमेशा तो सिक्योर पोर्ट रहता है, हमेशा किसी और पोर्ट पे चलता है, सेम पोर्ट पे काम नहीं करता, ठीक है। जैसे कि पोर्ट्स एक्चुअली होता क्या है, पोर्ट्स होता है जस्ट लाइक ए डोर, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए ओवर इंटरनेट पोर्ट्स इज रिक्वायर्ड नहीं, बिना पोर्ट्स का कोई भी कम्युनिकेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक ए दरवाजा। सो कोई भी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से जाएगी तो डेफिनेटली कोई दरवाजे से जाएगी ना। नाम तो उसका IP एड्रेस है ही, उसको एक पहचान मिल चुका है, लेकिन निकलने के लिए भी तो कोई डोर चाहिए ना, राइट। जैसे कि आप अपने घर से निकलते एक दरवाजे से निकलते, फिर आप ऊपर के दरवाजे पे एंटर कर जाते हो, दिस इज योर डेस्टिनी, राइट। सो आप एक पोर्ट से निकलते हो डिफरेंट पोर्ट पे एंटर करते हो, है कि नहीं?
So we never know कि हमारे सिस्टम से कौन से पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट जा रही है। आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ कि रिक्वेस्ट मेरे सिस्टम से कौन से पोर्ट पे जा रही है, देखना है। ठीक है, दिखाता हूँ। ठीक है, वायर्स आर ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं इथिकल हैकिंग में दिखाऊंगा, तो अभी ये पॉइंट लाना ही बेकार है। ठीक है, 21st कोड जो है वो ऑथेंटिकेट करता है यूजर को। कौन सी? 21st कोड जो है FTP में। FTPS में भी 2 पोर्ट हमारी चलती है। ठीक है, समथिंग 900 जो बताया, 990 एंड और एक पोर्ट पे चलती है, 2 पोर्ट पे चलती है। 21 बता रहा है। नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे 2 पोर्ट पे चल रही है ना, वहां पे भी SFTP हमारी 2 पोर्ट पे ही चलेगी। देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, साइट, अपनी कंपनी की साइट ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी से बात है, HTTPS पे चल रहा है, दैट मीन्स पोर्ट नंबर 443। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी किस पोर्ट, इसके किस पोर्ट पे जाएगी? 443 पे जाएगी। ठीक है, ये अच्छे से कौन समझ पाएंगे? जो पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो पेन टेस्टर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है उन्हें पता होगा 443 क्यों 443। ठीक है, अब मैं यहाँ पे HTTP फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, ये डेस्टिनेशन की आईपी है, ये मेरी सोर्स आईपी है। ठीक है, यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर दिखेगा आपको, पोर्ट व्हाट्सएप में तो पोर्ट यहीं पे दिख जाती है, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है? तो देखो यहाँ पे TCP पोर्ट नंबर 80 दिख रहा है। HTTP टू वेट, वर्चुअल बॉक्स में था। इट्स ऑलवेज यूज टू शो द पोर्ट नंबर, जैसे कि मैं भी देख कर रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा है ना 6489, ये मेरे सिस्टम की पोर्ट नंबर है। ठीक है, एंड ये कहाँ पे जा रहा है? इस पोर्ट नंबर पे जा रहा है, इस सर्वर। ठीक है, तो ये गूगल मीट का चल रहा है हमारा, ये उसी की है। ठीक है, इसलिए मैं वर्चुअल बॉक्स में दिखाऊंगा आपको कि अच्छे से आपको वहां पे पता चल दिखे फिर।
So I hope my screen is visible, everyone. sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट हो तो पूछना आप लोग, ठीक है? चुप मत रहो। चुप रहोगे तो फिर मैं बेवकूफ बेवकूफ बना दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? सो डोंट बी डम। सर काली डुअल बूट पे ज्यादा स्मूथ वर्क करता है सर, पर वीएम इतना स्मूथ वर्क नहीं कर पाता। सर आपको कुछ पता है कि कुछ सेटिंग्स वगैरह जो इससे थोड़ा सा स्मूथ वर्क करे? क्या क्या वीएम? जैसे सर आपका जो काली लिनक्स है ना वो काफी स्मूथ वर्क कर रहा है कंपेयर टू माइन। मुझे सिस्टम कॉन्फ़िगर होनी चाहिए ना। वेल, आपके सिस्टम में जान ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? वैसे तो 300 GB कम नहीं होता सर वैसे मेरे ख्याल से, स्टोरेज के लिए। और रैम अगर ले रखी है उसको 8 काट दे। 300 GB? समझा नहीं, 300 GB? सॉरी सॉरी, 300 GB नहीं, 300। हाँ जी, 300 GB सर, मेरा 1 TB का है, हाँ 300 GB। तो बस स्पेस देने से नहीं होता ना, आपको सीपीयू एंड आदि रैम भी आपको असाइन करनी पड़ती है ना। आप तो ऑफलाइन आने वाले थे, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? सर मैं सर कल आऊंगा सर, अभी मेरे 12 बजे सर बस है ना, थोड़ी देर में निकलना है सर। मैंने बस मीट 12 बजे तक मैं मीटिंग से हट जाऊंगा सर, फिर मेरे को बस चलेगी। जैसे जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया and यहाँ पे देखो बंच ऑफ रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, ठीक है? तो आप ध्यान से देखोगे ना कि पहला रिक्वेस्ट देखो कहाँ पे गया। सारे टीसीपी फिल्टर कर देता हूँ। HTTP। यू सी हियर, ये मेरी सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन मींस एनटीए की मैं वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहा हूँ, तो तेरा संजीव की ये उसकी सर्वर की आईपी है, राइट? कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रही है यहाँ पे? टीसीपी, ठीक है? एंड ये क्या है, हमारी लेंथ है पैकेज की। ये जो 54 दिख रहा है ना, ये लेंथ है, ठीक है? एंड देन ये 52906 दिख रहा है ना, ये पोर्ट है, ठीक है? एंड ये पोर्ट कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, कौन से पोर्ट पे जा रहा है ये रिक्वेस्ट? ये 443 पे जा रहा है, दैट मीन्स HTTPS पे। करेक्ट। तो जो भी रिक्वेस्ट जाती है हमेशा एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे पे एंटर करती है, ठीक है? ये क्या है? ये एक्चुअली सोर्स एंड डेस्टिनेशन मीन्स पाथ है, कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है? अब इसे तो नहीं पता ना कि किस दरवाजे में घुसना है, राइट? दरवाजे तो कितने सारे, घर पे कितने सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन सही दरवाजा कौन सा है? देखिए, जब तक ये सही दरवाजे पे नहीं जाएगा तब तक आपका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे पोर्ट इज जस्ट लाइक ए डोर। जैसे डेस्टिनेशन आईपी डालेंगे तो यूआरएल आ जाएगा। यूआरएल वेबसाइट का नहीं, आप यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हो ना, फिल्टर में बताऊंगा, बताऊंगा। सब आज ही सीख जाओगे क्या? राइट, सो hope guys you have understand. Hello, hello. Am I audible, guys? Yes, sir. Yeah, great. FTP तो आप हाँ, FTP दिखाया नहीं मैंने। FTP फिर दिखाने के लिए यही है ना कि दो सिस्टम फिर मुझे ऑन करना पड़ेगा। एक तो है ठीक है, चलो दिखा देते हैं FTP। प्रैक्टिकल FTP जाके वहां से सर्विस ऑन करो, और सर्विस ऑन करने की कमांड पता है? स्टार्ट FTP स्टार्ट FTPDS या फिर ओनली .d होगा, चेक कर लेना। ब्रिज पे कर दो आप।
सो काली लिंक्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई सर्विस को इनेबल करते हैं, ठीक है, कैसे सिक्योर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, बस हल्का फुल्का बताऊंगा, बाकी आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। हम इतना ही बताएंगे जितना हमारा काम हो जाए, आप लोग में हमारे लिए उतना काम कर पाऊंगा। एंड और चीज़ें सीखनी है तो फिर सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं सिखाएंगे, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या पूछ रहे हो उस बिहाफ पे, ठीक है। हाँ, हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड हो रही है इससे फिर, ठीक है, निकालो। क्या क्या सर्वर आईपी, आईपी एक्चुअली असाइन ही नहीं करना, उनकी आईपी सही हो जाएगी। उनका जो राउटर जो दिया है ना आईपी, उसी आईपी से यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होगा उनका काली का। अरे अपडेट इतने समय थोड़ी लगती है, अपडेट जरूरी नहीं है। कि काम करो ना, किसी के पास वर्नेबल मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है मशीन है आपके सिस्टम पे है, ऑन करो फिर, उसके ऑन करके आईपी एड्रेस बताओ मुझे, एंड ब्रिज पे स्विच कर देना, ओके। ब्रिज पे कर देना, ब्रिज पे करने के बाद जो भी आईपी असाइन होगी मुझे देना। ऐसे ही बंद कर दो, ठंड हो रही है। हो गई, आईपी एड्रेस क्या सो रहा है? एक मिनट में भी ब्रिज पे स्विच हो जाता हूँ, दोनों आईपी क्या असाइन हो रही है मुझे। एक मिनट, I hope everyone have successfully installed their Kali machine to the VM or the VirtualBox. Yes, sir. Yeah, good. Pooja, have you done that? Yes, sir. Yeah. Are you doing practice there? Yes, sir. Great. So I have already provided you the access, right, of the recording session and the notes. So kindly go through it. Okay, tell me the IP.
192.168.139.132. 139.132. क्या था लास्ट का? 139.132. 139 डॉट 132. ये तो पिंग भी नहीं होगी, ये तो आउट ऑफ द नेटवर्क ही है आई थिंक। मैं जिस रेंज में हूँ 1.10 है। आप किसके साथ कनेक्टेड हो? 2.4। वैसे तो नहीं है 2.4। ब्रिज पे है। कनेक्ट ही नहीं हो रहा। काम करो, मैं कनेक्ट करता हूँ, आप अपने लैपटॉप से क्लासेस ज्वाइन करो एंड देन स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? लैपटॉप इधर लेके आओ। स्क्रीन शेयर कर देना। So actually I gonna show you here that if we are using the FTP, okay, means the non-secure version of the FTP, right? So what hacker actually achieve? Okay, if you are using, if you are actually setting the files and the folders and you're typing any command, so hacker can show all the things. So बंद कर दूँ? This is your IP. ये काली लिंक समझ रही है? So here there are two machine. One is vulnerable meta-exploitable machine. Okay, so IP is this. जैसे कि आपको पता है कि सभी मशीन का एक एक IP रहता है, राइट? एंड हम लोग जस्ट एज्यूम कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है? इसको हमें हैक करना है इस मशीन को, ठीक है? या देखना है हमें कि इसमें कौन सी सर्विसेज वगैरह चल रही है। So 193. पंचरी कहते नहीं, ये बार बार क्यों आपसे पूछ रहे? यूएसबी कहाँ देते क्या? छोड़ आएगा सिस्टम का, कुछ दिक्कत है? नहीं कुछ दिक्कत है, इसको एक बार अपडेट वगैरह करके। सो 139 और 133 सिस्टम कोई पिंग नहीं कर पा रहा। नेटवर्क दोनों का डिफरेंट है। कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो यहाँ पे। मैं कुछ करके दिखाऊंगा, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहा हूँ। दोनों का नेटवर्क डिफरेंट है। सेम नेटवर्क पे ठीक है। तो ये चीज़ हम दिखाते हैं, ये आगे सेशंस में दिखाएंगे, ठीक है? ले जाओ अभी के लिए, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द SSH. So the practical stuff I'm gonna show you on the upcoming classes, okay? So don't worry. स्क्रीन बंद कर देना अब।
साइन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये VM में दिक्कत है। सभी भी नहीं, किसी किसी सिस्टम पे दिक्कत है कि वो IPS साइन नहीं कर पाता इन दी ब्रिज, इसलिए आप अगर ब्रांडिंग यूज करो दूसरे मशीन के अंदर अगर आप चेंज कर देते हैं ब्रांडिंग उसका भी हो जाता है। फिर भी वो चेंज नहीं कर पाता। आप ऑफ कर पे करोगे ना ब्रिज पे तो नहीं कर पाता। ये वर्चुअल बॉक्स में सॉरी VMware में ये दिक्कत है, वर्चुअल बॉक्स में ऐसा नहीं, वर्चुअल बॉक्स से साइन कर देता है प्रोटोकॉल। वर्चुअल बॉक्स ही है, साइन नहीं कर पा रहा वर्चुअल बॉक्स। नहीं कर पा रहा। चेक करो कि 2-4 एडेप्टर हो सकता है कि इनेबल हो। So next is SSH. So what is SSH, gentlemen? Tell me. Port number 22. Okay, so at this default port, our SSH service actually run. SSH. So what is SSH? Secure cell. Correct. Secure cell. Okay. So why actually we use this? What the purpose of this? Anyone? Anyone have any idea? Yes, sir. Yeah, बताइए राजेश। ये एक स्थान पर बैठ के दूसरे लैपटॉप को या कोई भी मशीन को एक्सेस करने के लिए ये By सिक्योर connecting remotely, sir. Yeah, to connect remotely from one From computer one to the place two to, computer. yeah. Correct. So Rajiv, you can continue again. जो हमारे हिंदी दर्शक है वो भी सुन पाए, आप बताएं, कंटिन्यू कीजिए आप। मैं बोल रहा हूँ ना सर, जैसे आप यहाँ पर बैठ के जैसे आप अपने जगह पर बैठ के किसी के मशीन में इंटर करना चाहते हो तो HSS के थ्रू आप इंटर कर सकते हो, सिक्योरली इंटर कर सकते हो और काम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरली का मतलब इसमें कोई इंटर नहीं कर सकता है सर। SSH में कोई एंटर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिक्योर अलग चीज होती है। मैंने बस आपको बताया था सिक्योर, जैसे कि FTPS के बारे में, ये सिक्योर है। इसमें सिक्योर सेल होता है सर, और ठीक ये है। इनबाउंडिंग डायरेक्शन में काम करता है। इन बॉन्डिंग, ये तो आपने नया टेक्निकल वर्ड उठाया है। कहाँ से उठाया ये टेक्निकल वर्ड? ये तो मुझे भी नहीं पता था। ओके, थैंक यू राजीव। ओके Vamsi, you can tell why we use secure cell. Vamsi. To access remotely, we use secure cell, sir. Okay, so why it is secure? Here, the data is encrypted, so hacker can access the data. So we use secure shell, sir. Correct. Actually, if you say at the old eras, we used the Telnet, right? Telnet is also same. It's also used to actually uh, access the other system. It help you to connect with the other system, like other services. But Telnet is not secure, just like FTP, right? Everything actually shared in the plain text, so anyone can. So anyone can actually intercept that request, right? And they can see what commands they're typing, what the username, what the password they're typing, everything. As everything is going through a plain text. That's why the secure cell is actually come with an encrypted mode, having a features of encryption. So it will actually help you to connect the other system, right? Through SSH you can connect to the other system and type any commands, and remotely you can connect it, right? And this is totally secure. So everything whatever you are typing the command and typing the username passwords, everything goes in an encrypted way. That's why it is secure. And we use SSH over actually a telnet. So you can say that it is a secure version of Telnet.
I hope you got it my point, everyone. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Ajay Singh, Yes, sir. I hope you got it. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And Surya Kumar. Yes, Surya Kumar. Yes, sir. Got it, sir. Got it. कुछ डाउट्स वगैरह आ रहा है आपको, कुछ ऐसा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? सर मुझे सर आपने सर HTTPS के बारे में तो बता दिया सर, इसके मतलब पोर्ट वगैरह। सर HTTP में हम किस में मतलब एंटर कर सकते हैं, लाइक हम क्या क्या देख सकते हैं, ये शिफ्ट क्लोज सर्विस सेल पॉइंट सर ये। एससीटीपी में वो भी मैं बताऊंगा आपको, एससीटीपी में धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो एससीटीपी में भी हम बताएंगे आपको, ओके? एंड ओके सर। प्रसाद, बोर्ड ऑफ पेट, बताइए प्रसाद। Hello, sir. Yeah, how are you? I think this is your first class, right? Yes, sir. This is my first class. So how is going? It's going good only. Okay, I hope you got it my point. About secure shell, understood, sir. Yeah. And anything you face, and please tell me, right? Any issues regarding Sure, sir. understanding, Definitely. then let me know. Yeah, thank you, sir. Yeah. And Kumar Pritam, Yes, sir. बताइए, समझ में आ रहा है आपको? Yes, but उतना क्लियर नहीं हो पा रहा सर, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज मतलब नहीं, आपका बस वो हिंदी है सर, मतलब इंग्लिश उतना क्लियर नहीं। ओके, कोई नहीं, But- तो मैं थोड़ी बहुत बताते चलूंगा, यहाँ पे राजीव है, आपको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करते जाएंगे। वो कर रहे हैं सर, थोड़ा अपना गूगल पे। हाँ, आप राजीव से कनेक्टेड रहो, राइट? एंड ओके ओके राजीव, yes, sir. बस दो सिस्टम आप ऑन करके रखोगे तो यही होगा। एक ही सिस्टम से कनेक्टेड रहो आप, ठीक है राजीव? सो दैट वॉइस ऐसा ना करे, ठीक है? एक को ना करे। So actually we use secure shell, right? So why we use? To take the remote access of any computer. And it is secure, and it is, you can say that it is an upgraded version of Telnet, right? It is a upgraded SSH use SSL, right? To provide secure connection so that the hacker okay. So this is all about the SSH. Okay, so we can also share the file through a SSH. Okay,
SSH के थ्रू भी हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड किस प्रोटोकॉल के थ्रू, व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल? SFTP, correct. SFTP, and other is SCP. SCP is just like a tool, okay. It's also work over SSH. Yes, क्या बोल रहे थे आप? SFTP. So anyone know here SFTP? Hello. Secure file transfer protocol. Correct. Work on which protocol? Which port? Sorry. 22. 22. 22. So it is also a file transfer protocol, but it's used as SSH, right? Means a secure thing, so that no one can intercept any files, means any plain text, right? Whatever you are typing there. So hacker doesn't understand it whatever you are typing there, commands and etc. and etc. Also work on port no 22 over SSH. Okay. To share the files and the folders. So next is Telnet. So what you know about the Telnet? Telnet. Yeah. Tell me guys, what you know about the Telnet? So जब इसकी बात नहीं आती है यूजर नेम पासवर्ड और प्लेन टेक्स्ट यूज करते हैं ये यूजर नेम पासवर्ड्स और प्लेन टेक्स्ट ये इन चीजों को स्टोर करती है तो उसके लिए Anyone else here? यस सर, हाँ ये बताइए राजीव। प्लेन टेक्स्ट में ही फाइल को ट्रांसफर कर देता है, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है और ये इसमें सिक्योर। encryption नहीं होता। ओके, सो टेलनेट से एक्चुअली हम लोग करते क्या है ये बताए प्रसाद, कैन यू? सर हम कमांड्स रन कर सकते हैं। करेक्ट, कमांड्स रन कर सकते हैं। In fact, we can access the FTP server through Telnet also. We can access the SMTP server through Telnet. We can use SSH through the Telnet. So it is also a remote access protocol, okay? But whatever आप जो भी इस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट करोगे, it's like insecure हो जाएगी। Correct. Right. So whatever you are doing the tasks on the Telnet, everything's flow in a plain text. So that's why we use SSH. SSH is also a remote access protocol, right? And Telnet is also a remote access protocol. But पहले हम Telnet का काफी ज़्यादा यूज करते थे जब तक SSH नहीं आया था, लेकिन अब Telnet हम लोग यूज नहीं करते, काफी कम, मिनिमम। आई होप आप समझ गए। Yes, sir. यस सर। जो हमारा बट पैड होता है सर, क्या होता है? बट पैड जो होता है वो टेलनेट पोर्ट नंबर पर काम करता है। क्या बोल रहे हो? बट पैड जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो टेलनेट हाँ, पे करता है। नहीं, किसने बताया?
अ, नहीं ऐसा है तो आया दिमाग में तो ऐसा बोला सर। वो तो देखो, टेक्स्ट एडिटर तो हमारा है, क्या आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशंस हो गया ना। ओ ठीक है। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये होता है ना कि आप जो भी चीजें वहां पे लिखोगे ना, तो वो हमें उसी फॉर्मेट में दिखेगी, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ओके। ठीक है। अब मान लो आप कहीं पे पासवर्ड लिख रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर में, मैं यहाँ पे ही देख लो, कहीं पे यहाँ पासवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ से जैसे कि आप देख रहे थे वायर सार्क में सारी ही रिक्वेस्ट वगैरह कैप्चर हो रही थी, ठीक है। तो आप मान लो वैसे ही CLI पे जा रहे हो, कुछ कमांड वगैरह टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को प्लेन टेक्स्ट में देख सकता हूँ एज इट इज, जैसे आप लिखोगे ना वही चीज़ मैं देख सकता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ओके। ठीक है, इनके प्लान फॉर्मेट जो भी आप लिख रहे हो, उसी फॉर्मेट में हम उसको देख पा रहे हैं। सो टेलनेट क्या है, इस इट्स आल्सो रिमोट एक्सेस टेलनेट। सो पोर्ट नो 23, okay, Yes. port no 23 uses telnet. It is also a remote access protocol. Help us connect with the other system. Over telnet. But it is insecure. Whatever the communication happens in telnet, it goes over a plain text. This goes everything in plain text. And it is mostly used in ओल्ड एज लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ओल्ड एज। ओके, अभी भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती है, ठीक है। सो एक्चुअली इस चीज़ को टैकल करने के लिए फिर SSH लाया गया, राइट। सो SSH इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेलनेट, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा शेयरिंग का ये इस टाइप की सॉफ्टवेयर चल रहे थे, करेक्ट। तो उनमें जो प्रोटोकॉल यूज होते थे वो एक भी दुनिया के यूज थे। हाँ नहीं, वो अपने खुद आप डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स वो TCP ही यूज़ करते होंगे, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट सर्विसेज अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। जी। ठीक है, जस्ट लाइक SSH is upgraded version of telnet, ठीक है। So anything you want to ask about the telnet? I hope it's clear. Okay. टीपी भी चल गया और वो SFTP दोनों चले। वायर सर्च पे चला के देखिए।
चेक कैप्चर हो रहा है? कैप्चर हो रहा है? पक्की बात? कर ठीक है। पे स्क्रीन शेयर करो, वहीं से स्क्रीन शेयर करो एंड करो फिर। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, हमारी FTP, SSH एंड पोर्ट नंबर 23 दैट इज टेलनेट। अब हम यहाँ पे एक डेमो परफॉर्म करने वाले हैं FTP के बारे में, राइट, कि FTP कैसे इनसिक्योर था, ठीक है, एंड कैसे हम जैसे ही लॉगिन या फिर कुछ करते थे, कमांड्स वगैरह टाइप करते थे, तो कैसे हमें एंड एज ए प्लेन टेक्स्ट हमें सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। सो या सो स्क्रीन शेयर कीजिए अमित जी। अमित ही नाम है ना? अमित, अंकित, पंकज। केशव, एक केशव झा था ना वो, समय रैना के साथ केशव झा। मेक सम नॉइस फॉर केशव झा। काफी अच्छा बंदा है केशव झा। क्या उसका वही था ना, क्या बोलता था? हे मूर्ख, अपनी वाणी सुधार। अंकित, सॉरी अमित, वायर सार के जो पैकेट्स वगैरह है इसे क्लियर करो आप पहले, ठीक है। देन आपको एक्सप्लेन करना है आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। माइक ऑन करो एंड बोलना स्टार्ट करो। आप ही को समझाना है सभी को। किसने किसने लीव किया? सभी का अटेंडेंस 0 कर देना है जिसने जिसने लीव किया। मैं नहीं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो चलो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन वाले, इसलिए मैं बार बार स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए, ठीक। सो बाद में इनका, हाँ, प्रूफ इज जस्ट लाइक अ प्रूफ। हेलो एवरीवन। पहले तो इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में कि आप क्या करते हो, इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हो। सर ये सब छोड़ दीजिए। So here we can see we have the Metasploitable machine in which we can see we have the IP here, and the FTP server has configured, and we will just use our Kali Linux and try to connect to the same FTP server. So the similar IP. ओके ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बस FTP के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। FTP सर्विसेज का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक मशीन चल रही है वर्नेबल मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन करके, एंड उस मशीन, इस मशीन पे हम कनेक्ट होने वाले हैं थ्रू किसके थ्रू, थ्रू करेक्ट FTP के थ्रू, ठीक है। तो चलो आओ वहाँ पे देखो यहाँ पे अब नेम मांग रहा है, सो वेट, यहाँ पे वेट करो एंड जस्ट ओपन द वायर्स आर्क इन द काली मशीन। अब जो भी यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हम टाइप करेंगे वो सारे इन्हें प्लेन टेक्स्ट हमें देखने को मिलेंगे। वायरसर्फ के अलावा हम गिटर के भी यूज कर सकते हैं, गिटर के भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा इन द एथिकल हैकिंग और सेशन में, ठीक है। फॉर नाउ वी गोना सी ओनली द वायरसर्फ, करेक्ट। So now we're gonna put here the username, admin, and password. Okay, and then type the command ls-la. You see? So हम सक्सेसफुली उसके FTP सर्वर पे हम एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करो uname -a, इनवैलिड कमांड हेल्प टाइप करना और info। यहाँ पे कमांड देखो info होगा, info दिख रहा है आपको कुछ कमांड? status
PWD. ओके ठीक है, तो आप हमने इतना यहाँ पे कमांड चलाया, अब हम वायर्ड शार्ट में चाहते हैं ट्रैफिक को स्टॉप करके एनालाइज करते हैं, राइट? तो व्हाट एवर द कमांड हमने यहाँ पे टाइप किया ना, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो स्टॉप करो इसे, रेड पे क्लिक करो, हाँ इसको मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज कर दो पूरा, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो आप, दिख रहा है ना यूजर नेम क्या हमने टाइप किया था यहाँ पे, लैपटॉप इधर लेके आओ, मैं दिखाता हूँ। Same पहले same. फुल स्क्रीन करो, हाँ फुल स्क्रीन करो, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट, राइट? यूजर जो पैरामीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? MSF एडमिन। पास में क्या दिख रहा है? USF एडमिन। अमित अपना माइक ऑफ कर लेना। लैपटॉप लेके इधर आ रहा। सो आई होप आपको दिख रहा होगा। हेलो हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? व्हाई इट इज अनसिक्योर? तो देखो ये रिक्वेस्ट था हमारा, राइट? हमने क्या किया था, पहले हमने रिक्वेस्ट किया था, यूजर नेम टाइप किया था यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपको पैरामीटर दिख रही है यहाँ पे, एंड जैसे यहाँ पे आके आपको दिखना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर नेम जो पैरामीटर यहाँ पे क्या टाइप हुआ था, MSF एडमिन, राइट? समय क्या पता चला, यूजर नेम MSF एडमिन है, ठीक है? आखिर इस नेटवर्क पे कोई भी स्नीफिंग अटैक परफॉर्म कर रहा होगा तो ये सारी चीजें ये देख सकता है कि इस यूजर ने क्या क्या टाइप किया यहाँ पे, ठीक है? एंड किस सर्वर के साथ ये कनेक्टेड था, ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपको डेस्टिनेशन। देखो जो भी यहाँ पे इससे कमांड टाइप किया, सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी आप, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ls हमने कमांड टाइप किया था, तो यहाँ पे लिस्ट क्या हो गया आप, तो यहाँ पे बता रहा है कि लिस्ट कमांड यहाँ पे चली थी, राइट? सो ऐसे हमारा चल रहा है। देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हमें दिखा कर, मान लो लॉगिन सक्सेसफुली नहीं होता तो यहाँ पे क्या दिखा था, लॉगिन फेल। So everything is going in a plain text, right? We can analyze it, we can see it, what commands are running. अब यहाँ पे देखो उसने pwd कमांड चलाया था, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिक्वेस्ट में क्या है, pwd, एंड द पाथ भी रेस्पॉन्स क्या मिला था हमें, यही रेस्पॉन्स मिला था, एंड ये रेस्पॉन्स हमें दिख रहा है, right? So that's why FTP is insecure. Okay, मैंने FTP कॉन्फ़िगर FTPS फिर मुझे ऑन करना पड़ेगा, वहाँ सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। SFTP also. I hope it's clear. वामसी, कुमार प्रीतम, यस सर। समझ में आया आपको? सर क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ, ओके ठीक है। सो वामसी, ओके, सो रिपीट करने के लिए बोलते हैं, रहने दो अभी इनको वही समझा देता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, ये थोड़ा आगे समझाना था। तो क्या है देखो, लैग नहीं कर रहा, पावर प्लगइन नहीं इसलिए, पावर प्लगइन नहीं है इसलिए। सर मेटा एक्सप्लॉइट का आईपी को चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? इफ कॉन्फ़िग, कोई भी लिनक्स पे सिस्टम के लिए इफ कॉन्फ़िग, विंडो है तो आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है? या फिर आईपी स्पेस ADAR कर सकते हो, ADDR। हाँ
ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला जो था हमने क्या किया था, एफटीपी सर्विस के थ्रू ना हम ना उस मशीन पे कनेक्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने सारे कमांड्स वगैरह चलाए, जैसे कि एफटीपी से कनेक्ट करते ही यहाँ पे यूजर नेम हमने स्पेसिफाई किया था, फिर हमने पासवर्ड स्पेसिफाई किया था, फिर हमने एलएस कमांड यहाँ पे चलाई थी और प्रीतम एंड अंकित, ऋतिक रोशन, ध्यान से सुनो आप, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमने यहाँ पे परफॉर्म की थी। अब मैंने एफटीपी के बारे में क्या बताया था, ये इनसिक्योर है, राइट। तो जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे टास्क, जैसे कि पासवर्ड टाइप करना हुआ, कोई कमांड टाइप करना हुआ, सारी चीजें प्लेन टेक्स्ट में जाएगी। दैट मीन्स इसको कोई भी रीड कर सकता है, ये एज इट इज जाएगी, राइट, एज इट इज नेटवर्क में फ्लो होगी, ठीक है। सो फिर ये सारी चीजें क्या हुआ, वायर शार्प मैंने ओपन कर दिया था, ठीक है। आखिर ये एनक्रिप्टेड, आखिर ये सिक्योर होता तो क्या होता, हमें ये सब पासवर्ड्स वगैरह इन अलग फॉर्मेट में देखने को मिलता, मीन्स एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर सर्विस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो वायर शार्प हमने जब ओपन किया तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे यूजर नेम हमने टाइप किया था MSF एडमिन, तो हमें यहाँ पे MSF एडमिन यूजर दिख रहा है, ठीक है ना। कि हमने ये टाइप किया था, रिक्वेस्ट में क्या किया था, दिस इज अ पैरामीटर USR, ठीक है, एंड दिस इज अ MSF एडमिन यूजर नेम, ठीक है। फिर वहां से रिस्पॉन्स हमें मिला, ठीक है। फिर हमने पासवर्ड भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे क्या बता, प्लीज एंटर द पासवर्ड। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड, फिर यहाँ पे हमने पासवर्ड टाइप किया, तो पासवर्ड भी हमारा MSF एडमिन ही था, तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में हमें दिख रहा है, राइट। तो जैसे हमने पासवर्ड वहाँ पे सेंड किया, तो हमें वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, जस्ट सी हियर रेस्पॉन्स दैट लॉगिन सक्सेसफुली, हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। जस्ट इमेजिन कि आप क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहे हो, एंड हैकर आपके ही नेटवर्क के अंदर है, राइट, एंड हैकर वो सारी चीजें रीड कर पा रहा है कि आप पासवर्ड आपने क्या टाइप किया, राइट, यूजर नेम क्या था आपका। तो वही चीज यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक यूजर क्या कर रहा है, एक सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहा है, किसके थ्रू, FTP के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज जो चीजें वो परफॉर्म कर रहा है ना, तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। आखिर मान लो इंस्टाग्राम इनसिक्योर हुआ तो क्या करोगे, क्या होगा, इंस्टाग्राम में आप जो भी चीजें टाइप करोगे, ठीक है, आखिर वो HTTPS पे ना चल के HTTP पे चल रही होगी, तो जो भी चीजें आप टाइप करोगे ना, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, पासवर्ड्स आपकी, राइट, आप किसको लाइक कर रहे हो, किसकी प्रोफाइल से आउट कर रहे हो, सारी चीजें हम देख सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ लाइक दिस पैकेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लॉगिन सक्सेसफुली मिला। फिर हमने जो यहाँ पे कमांड टाइप किया, वो कमांड यहाँ पे हमें दिख रहा था, दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये टाइप किया था एल लिस्ट, तो हमें लिस्ट का मिला, ठीक है। अब बताओ, हाँ, फिर हमने यहाँ पे PWD कमांड टाइप किया था, हमें रिस्पॉन्स क्या मिला था, ये हमें रिस्पॉन्स मिला था। तो सारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमें मिल रही है, ठीक है। तो कल मैंने आपको दिखाया था एक सिमुलेशन, मैंने हब आपको दिखाया था, हब एंड स्विचेस, राइट। तो आपने नोटिस किया था ना कि एक जगह से जब मैं कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ कहीं पे भी, राइट, तो कैसे सेंड हो रहा था, एंड वहां से कैसे रिप्लाई आ रहा था, कैसे हो रहा था, नेटवर्क के थ्रू ही तो जा रहा है ना। आखिर हम नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, एंड आखिर वो सर्विस इनसिक्योर सर्विस के थ्रू भेज रहा है, तो सारी चीजें तो हम देख सकते हैं उसके, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी के जमाने में ऐसे ऐसे टूल्स है ना, आप कहीं भी यूज कर लो, फिर आप इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हो ना वेब में, फिर भी कोई भी उसको मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी एंड टूल्स आ चुकी है। इन द यूएस में क्या है, यूएस में आप एक व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हो ना, CIA बैठ के उसको देख रही है, ठीक है। हर एक पैकेट्स उनके लिए ओपन है, वो हर एक पैकेट्स को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, वेदर आप कोई सिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें मॉनिटर करता है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको आज, ठीक है। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे
या फिर हम 1 घंटे बाद फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि सही है ना? SFTP हेलो, ओके सर। यस सर। समझ में आया सभी Okay, को? sir. कोई डाउट वगैरह है तो पूछो आप। यस सर। ओके, ग्रेट। प्रसाद, Hello, sir. हैव एनी डाउट? Sir, I have a doubt या regarding like you said, an attacker can enter in our network and can see all the packets that we are करेक्ट, ऑल द accessing. एक्टिविटीज व्हाटएवर यू आर डूइंग देयर, राइट? But how can a attacker enter into our network? Because it has our own IP address and MAC address. Now, how can he know the IP address? Because it is assigned for a part time only now, temporary type. Just imagine, maybe he can actually perform a brute force attack to your home router, right? Maybe. Yeah. Maybe a firmware vulnerability is there, maybe something, a vulnerability in a router, right? Through that process, hacker can also enter to your network. There are infinite way, okay? Understood. May the hacker perform a DOS attack to your Wi-Fi, right? It's go down and then it's gonna generate a fake Wi-Fi. So everyone wants to actually try with that. And they actually, when they type the password, the hacker able to know that, yeah, this Wi-Fi had this password. And they can easily enter to your Wi-Fi. So that's not a big thing, right? There is 10 to 15 ways, right, to hack your Wi-Fi. Yeah, sir. Understood. ठीक है, तो एक वाईफाई को हैक करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, ठीक है? काफी सारे वेज में कोई भी एक वाईफाई कंप्रोमाइज हो सकती है, ठीक है? बट व्हाट द थिंग्स इज रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है? आप कितना चालाक हो, ठीक है? चोर बताइए कितना चालाक होता है, राइट? हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई करता है, राइट? सो एक हैकर को उतना ही स्मार्ट होना पड़ेगा। They have to think infinite think लेके चलना पड़ेगा हैकर को। हर एक पॉसिबल वेज वगैरह उसे ट्राई करना पड़ेगा, तब पहुंचा होगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यस सर। या ओके, ठीक है, तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ 10 मिनट्स में, ओके? सो व्हेन द नेक्स्ट क्लास विल बी, एंड आज आप लोगों की फोरेंसिक क्लास भी है एट 4 PM, okay? So kindly be ready. Okay? ओके सर। Yes, sir. And Prasad, I'm gonna share you Drive access, okay? There you're gonna see all the recordings. Okay. So if any doubt, anything, then you can directly reach me out, okay? Or yeah, you can directly reach me out. I will help you out. Okay? Yes, sir. Thank you. Yeah, okay, welcome. So I'm actually available 24/7, okay? But when I'm sleeping, I'm not available at that moment. Otherwise, Yes, I sir. will Understood. available. Okay. So definitely, whatever the things you need to learn, you need any help, so you can directly ask me, right? Yes, sir. Okay. Okay, then bye bye. Take care, everyone. Thank you, sir. Yeah, welcome. थैंक यू सर। Welcome.